रॉनी और जरीना स्क्रूवाला, ये दो नाम। ये अकेले ही चल पड़े थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हिम्मत थी अपनी खुली आंखों से नामुमकिन लगते हुए ख्वाब देखने की। कुछ ने कहा शायद हो ना पाएगा, मगर ये 1.5 अक्षर आग जैसे नहीं, अगर जाग जाएं तो आग हैं। बिल्कुल सही कहा गया है इस परिवार के लिए। इन 1.5 अक्षरों से बने हम, इन 1.5 अक्षरों से बने तुम, और इन्हीं 1.5 अक्षरों से बना ये स्वदेश परिवार। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की मशाल लिए हुए पिछले कई वर्षों से तत्पर है स्वदेश फाउंडेशन। तुझे है पुकारा। हजारों गांव वासियों के घर बसे, बच्चों को शिक्षा का लाभ मिला, बेटियों ने सफलताओं की राहें चुनी, आदिवासियों के घरों में भी उम्मीदों की रोशनियां जली, पीने को और स्वस्थ जीवन जीने को पानी मिला, खेत खलियान लहराने लगे, महिलाओं ने जिम्मेदारियों की मजबूत डोरें थामी, लौट के शहरों से युवा अपने अपने घर को आए। सिर्फ इंसान ही नहीं पर पेड़ पौधे पशु पक्षियां भी मुस्कुराए। ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था, और इस साल तो जैसे मुसीबतों के सैलाब का सामना करना पड़ा है। कोरोना महामारी और हाल ही में आए हुए चक्रवात जैसे कठिन परिस्थितियों में भी स्वदेश फाउंडेशन की टीम रुकी नहीं। ऐसे समय पर खुद पे आई मुसीबतों की परवाह न करते हुए रायगढ़ जिले के वासियों की परवाह और सेवा में डटे रहे। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। फाउंडर्स की दूरदर्शिता रही। स्वदेश के इस मिशन में कई समर्थों का सहयोग भी रहा, पर इस फाउंडेशन के असली नायक है यहाँ काम करते हुए कर्मचारी। स्व से बने देश, स्वदेश आओ मिल के बदले। The Swadesh Building Livelihoods campaign raises funds to build livelihoods of 15,000 plus of the most needy households. Tribals, migrants, daily wage homes and others, the poorest of the poor families in rural Raigad and Nashik districts of Maharashtra. The aim of this telethon is to create self-sustaining communities as we build their capacities, strengthen inputs and market linkages, and ensure that every household earns at least 2 lakh rupees every year through a basket of programs. One fact that I must point out right at the start, that every 1 rupee you contribute to Swadesh, the farmers will get 3 times that, 3 rupees for every one. So basically, so your 1 rupee goes to the farmer as 3 rupees. And with Zarina and Ronnie there, the efficiency of the use of that funds will be outstanding, I assure you. We believe deeply that poverty is material but also mental, and therefore we believe in rural empowerment through various means, building various institutions, one of which we will be talking about as we go along is, and as I said, the real magic of Swadesh, the uniqueness of Swadesh is our 360-degree model, one of which, and maybe our pinnacle, is livelihoods, which we're discussing today. Zarina's given a very clear idea of what we do. I think the aspect of being an execution foundation really means, like anybody else in the social form, I think there's incredible work being going on by many people. But our ability to be right in front allows us to be nimble, allows us, most of us in the NGO space think this is what the community wants and we go out to deliver that. We rarely look at what the community may want in return. We got to build their trust. We wish Swadesh and the very best for the Building Livelihoods program. This is really a critical program and I would encourage everybody to join it and be part of it with Swadesh. When you actually start putting the holistic development model, which we have been promoting, obviously that is something which people like it. So I'm sure Swadesh and others can work together and make sure that we can actually develop together a most sustainable livelihood, most sustainable development model,
most sustainable societies. This initiative of Swadesh building livelihoods, I am being told that it is going to cater to 15,000 families to rebuild their lives and to seek self-employment. This is a very good initiative. I think the entire landscape, if you like, of what Swadesh wants to do is really upliftment of rural livelihoods. Swadesh has helped people move back from large cities where they do pretty menial job of watchmen earning 10-15,000 rupees to having a much better livelihood back in the village. Zarina, last word with you. Thank you. Big thank you to all of you, really, for all this effort, and big thank you for all the donors and all the donors that are to come. Really, there are a lot of people that need help, and I'm thanking you in advance for all the donations you're about to give us. रायगढ़ महाराष्ट्र के मध्य में बसा हुआ पूर्व मराठा साम्राज्य का एक मुख्य क्षेत्र। रायगढ़ एक ऐसी धरती जहां उपजाऊ जमीनें तो है, पर गिने चुने परिवारों का पेट भरने के लिए अनाज उपजा पाना संभव था। जहां जमकर बरसात का पानी बरसता था, पर साफ पीने के पानी के लिए महिलाओं को मीलों तक रोज चलना पड़ता था। बंजर पड़ी जमीनें, सूखे बर्तन, प्यास से विचलित लोग और लाचारी। युवा और गांव के कई परिवार गांव छोड़कर शहर निकल पड़े थे। कितने बूढ़े बुजुर्गों ने हालात से समझौता कर लिया था। महाराष्ट्र की उपजाऊ मिट्टी पर बसा ये क्षेत्र पिछले कई वर्षों तक सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहा। स्वास्थ्य और शिक्षा की सारी सुविधाएं गांव तक पहुंच नहीं पा रही थी। लोग खुले में शौच जा रहे थे। कदम कदम पे जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। मानो सांस लेना भी चुनौती से कम ना हो। पानी की समस्या से हुई शुरुआत धीरे धीरे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका निर्माण करने के सफर में स्वदेश फाउंडेशन का मानना था कि किसी भी ग्रामीण भाग में विकास तभी संभव है जब उसके विकास के चारों छोरों पर बराबर काम किया जाए। स्वदेश फाउंडेशन ने विकास के 360 डिग्री मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य हर घर में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुनिश्चित आय का निर्माण किया जाना है। हर परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी गरिमा और स्वाभिमान के साथ जिए। एक सक्षम जीवन जीने के लिए हर घर में रोजगार का होना और आय के स्रोत का बढ़ना जरूरी है। निश्चय है कि हर घर सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर ना रहे। हर घर में खुशहाली और समृद्धि का वास हो। इन गांव का सही मायनों में विकास तभी संभव है जब हर परिवार का आर्थिक बल बढ़ेगा। Swadesh Foundation has a unique 360-degree approach to rural development. देखा जाए तो ग्रामीण विकास को लेकर स्वदेश फाउंडेशन की सोच हर तरह से समग्र है, जो साफ पीने के पानी, स्वच्छता, घरेलू शौचालय, स्वास्थ्य और आजीविका पर जोर देती है। इससे ऊपर हमारा मानना है समुदायों को सशक्त किया जाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन की जिम्मेदारियां खुद लेनी चाहिए। Remove what we call this mental poverty, the sense of hopelessness, and allow them to not only help themselves but also help others. That's our dream, and we call it Swa se bane desh, Swadesh. स्वदेश फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक और भौतिक दोनों तरह की समस्याएं मिटाना है। हमारा मानना है कि ग्रामीण भारत अपनी नियति का नेता खुद बने, यह इस फाउंडेशन का प्रमुख लक्ष्य है, और इस तरह ऐसे मॉडल का निर्माण करें जो कि दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। पिछले 7 वर्षों में स्वदेश फाउंडेशन ने 5 लाख से अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है।
स्वदेश फाउंडेशन आदिवासी, प्रवासी, दैनिक वेतन मजदूर और अन्य गरीब परिवार जो ग्रामीण महाराष्ट्र के रायगढ़ और नासिक जिले से हैं, उन्हें आजीविका के विविध साधन उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जिम्मा उठाता है। गांव की युवा पीढ़ी और कई परिवार बेहतर जीवन की उम्मीद में शहरों की ओर चल पड़े थे, लेकिन अधिकांश लोग वहां संघर्ष से भरे जीवन जी रहे थे। अवसरों की कमी की वजह से वे गांव वापस आने का सोच भी नहीं पा रहे थे, पर जब उन्हें स्वदेश फाउंडेशन का साथ मिला तो उन्हें एक उम्मीद की नई किरण नजर आई। स्वदेश के साथ ये लोग गांव में स्थायी रूप से काम करके अपनी मेहनत से तरक्की की राह पर चलने लग गए। आइए देखते हैं ऐसी कुछ जिंदगियों का सफर। सुजाता कदम 2008 में मुंबई में रहती थी। उनके पति प्रदीप मुंबई के एक रियल एस्टेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मजदूर का काम करते थे, लेकिन ये नौकरी स्थायी न होने के कारण उनको हमेशा भविष्य की चिंता बनी रहती थी। प्रदीप का अपने गांव की ओर काफी लगाव था, जो कि उसको गांव की तरफ खींचता था, पर सुजाता गांव में कैसा जीवन व्यतीत होगा इस चिंता में थी। मेरी शादी 2008 में शादी हुई थी और तभी से हम लोग वहीं पे रहते थे। तो फिर हम लोग ने सोचा यहाँ पे आने का चालू था, गांव में आना चाहते थे, लेकिन गांव में कुछ साधन नहीं था। स्वदेश की ट्रेनिंग चालू थी। फिर इन्होंने 2-3 दोस्तों ने कहा कि ट्रेनिंग चालू है स्वदेश का, तो हम लोग का स्वदेश से कांटेक्ट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना ये दीजिए, योगदान दीजिए। फिर हम लोग ने सोचा कि क्यों नहीं, अगर ये हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे, तो हम क्यों ना करें। सुजाता ने हमें बताया कि स्वदेश फाउंडेशन हमेशा मदद और मार्गदर्शन के लिए तैयार रहता है। बकरियों के पालन पोषण, टीकाकरण तक की सारी जानकारी उन्हें स्वदेश से हासिल हुई। आज सुजाता और प्रदीप अपने गांव में 3 साल से रह रहे हैं और उनके पास 65 बकरियां हैं। सुजाता गर्व से कहती है कि उन्हें बकरी पालन का इतना अच्छा ज्ञान हो चुका है कि वो एक एक्सपर्ट बन चुकी हैं। उनका व्यवसाय बढ़ रहा है और अब वो स्वदेश फाउंडेशन को भी बकरियां बेचती हैं, जो बदले में उन्हें और जरूरतमंद गांव वालों को ऐसे ही अवसर प्रदान करने के उपयोग में आती है। जब हम लोग स्टार्टिंग पे यहाँ पे आए थे, तभी हम लोग को बहुत लोग हंसने लगे थे कि अरे ये लोग मुंबई छोड़ के यहाँ पे आए, ये लोग क्या करने वाले, इनका पूरा जिंदगी मुंबई में बीत गया था, यहाँ पे आके ये लोग क्या करने वाले। लेकिन आज की डेट में जो हम लोग पे हंस रहे थे, वही अभी हमसे बकरियां लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे हम गांव में आगे बढ़ते गए, सफलता की ऐसी अन्य कहानियां सामने आने लगी। स्वदेश फाउंडेशन ने कई जीवन बदल दिए हैं, उन्हें एक नई राह दिखाई है। सुजाता के गांव से 10 किलोमीटर दूर विकास कदम का गांव दिविल है। विकास मुर्गी पालन करते हैं। इससे पहले वो पुणे में मजदूरी करते थे। उनका मन तो बहुत करता था गांव लौटने का, पर हमेशा दुविधा में रहते थे कि गांव आकर करेंगे क्या। एक बार जब वो छुट्टियों में गांव आए, तब उन्हें पता चला कि स्वदेश फाउंडेशन की एक बैठक है और वहां से शुरू हुआ उनका ये सफर। मुर्गी पालन में सफलता पाने के बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा भी खरीद लिया, जिससे उनकी आय और बढ़ी। अब उनकी पत्नी मुर्गी पालन का व्यवसाय संभालती हैं और विकास रिक्शा चलाते हैं। ये उनके परिवार के आय का दूसरा स्रोत बन चुका है। 22 साल के संतोष भिलारी ने 2015 में अपनी शिक्षा पूरी की
और रोजगार की खोज में महानगरी मुंबई निकल गए और मुंबई में काम करने लगे। 9,000 रुपए की तनख्वाह और संघर्ष भरी जिंदगी, जिसमें ना जाने इंसान खाएगा क्या और बचाएगा क्या। स्थिति और बिगड़ती गई और 2018 में संतोष ने गांव लौटने का फैसला कर लिया। वहां जाकर वो अपने परिजन मनोहर जाधव से जुड़े, जिन्होंने स्वदेश की मदद से गांव में खेती को साकार किया है। स्वदेश के कुछ लोगों के साथ मीटिंग हो गई और वो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी। मुंबई में जितना मुझे पेमेंट आता था उससे ज़्यादा मैं अभी गांव में इधर कमाने लगा था, तो मुझे इधर ही गांव में अच्छा लगने लगा। हम 3-4 लोग मिलके खेती करते, उसमें हमारा एक साल का 12 लाख रुपए इनकम रहता है। उसमें 3-4 लाख रुपए खर्चा जाने के बाद हमें अभी 2.5 से 3 लाख साल में प्रॉफिट मिल जाता है। स्वदेश फाउंडेशन हर गांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल करने के उद्देश्य से भी आगे बढ़ रहा है, जहां हर घर की महिला आत्मनिर्भर बने और बेहतर भविष्य का निर्माण करे। आशा खेड़ेकर भी हर मां की तरह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, पर आर्थिक तंगी उन्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। 2018 में अचानक उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और इस बीच वो स्वदेश से जुड़ी और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों बच्चों को पढ़ाने का सपना भी साकार होने लगा। आशा की कहानी खुद ही एक बड़ा संदेश है कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद की पूरी जिंदगी में बदलाव लाने का काम करती है। आशा ने घर में रहने वाली महिला से एक सशक्त और सफल महिला बनने तक का सफर तय किया है। वो आज ग्राम पंचायत की सदस्य भी है। ये मुहिम आगे बढ़ गई है, बस जरूरत है इसे आंदोलन बनाने की, जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाने की और एक स्व आधार स्वनिर्मित गांव बसाने की। तो आइए स्वदेश के रंगों से घुलकर कई जिंदगियों में इंद्रधनुष के रंग भर देते हैं, आम सी जिंदगियों को छूकर खास बना देते हैं। स्वदेश की मुहिम से जुड़कर विकसित देश के निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। तो आइए स्वदेश से जुड़ते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी कई जिंदगियां बदल सकता है। साथ चलकर ग्रामीण भारत को संवारने का जिम्मा उठाते हैं, समाज के विकास में अपनी छोटी सी भागीदारी निभाते हैं। तो आइए स्वदेश से जुड़ते हैं, स्वदेश के साथ कदम से कदम बढ़ाते हैं। आइए स्वदेश से जुड़ते हैं। स्वदेश है तो संभव है।